Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Moeed from OCLP, Office of Corporate Linkages and Placement at UMT. Under the vision of President Ibrahim Hassan Murad Saab has launched a high impact iconic learning and development focused virtual career fair 2021 on the particular theme of chasing the dream career to prepare the students and facilitate them to emerge as a marketable graduates for the future world to work on. This Career Week is one of its kind engaging platform that has brought together the biggest, smartest, brightest gurus, speakers, panelists, and success icons from all walks of life. In this Career Week, students will be oriented about the expectations, emerging trends, and challenges of the industry. And the purpose of this session is to help students learn more about the industry trends and developments and prepare themselves according to the market needs. Prior to initiating the session, I would like to give a brief intro about our respected speaker today. His name is Mr. Mohammed Zulkifal. He's currently working as an HR business partner in the Hyman Group of Companies. Mr. Zulkifal has a very diverse experience in the HR industry and almost 10 years of experience in different corporate sectors of finance, retail, and pharma industry. Having interest in the HR and marketing, finance, and business strategy, it has helped him in gaining the experience in different industry. Or a little about the Hyman Group. As a research-driven company committed to the innovation, Hyman has proven itself with a short span of 22 years as a market leader with a broad portfolio of innovative and established medicine. I would now request Mr. Zulkifal to officially start the session and guide the students about resume writing skills. Thank you. Thank you so much, Mohit, for inviting here and guiding the students. It was a very good intro about you have given about me. It was very much brief. So I don't think that I need to give some intro to students anymore. Yes, we come to a topic that my topic was right job application and employers requirement. Okay. So many time it happens that from the industry we usually say that we does not found good stuff from the universities, right? So it's a big challenge for us too. Okay, okay, there are a number of universities but there are no good students. ठीक है. और यूएमटी का हमेशा इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है that they used to call the guest speakers from the industry who actually come for their mock interviews, for their guidance that how they have to cater the job in the market, right? So many of from the industry have given you about the brief about the CV and the resume writing, right? But I would like to tell you about the right job application. ठीक है. मोस्टली होता ये है कि दे हर कंपनी में हर तरह की जॉब हर तरह के स्टूडेंट के लिए नहीं है. ठीक है. एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्किल सेट. ठीक है. होता अनफॉर्चुनेटली ये है दैट वी कम टू यूनिवर्सिटी and our skill set is not yet defined, right? We choose the course by compulsion, by the choice of their group, right? By the choice of their friends, so who are actually doing the same course, right? So first of all, we need to identify our skill set, our interest, कि हमारा जॉब इंटरेस्ट क्या है, हमें किस एरिया में आगे किस फील्ड में हमें ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. और कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट से रहे. ठीक है. डजेंट मैटर वो डांसिंग है, डजेंट मैटर वो साइंस है, डजेंट मैटर वो आर्ट्स है. ठीक है. कोई भी ऐसी फील्ड हो जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो. ठीक है. और वहीं पे हम बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं. वहाँ पे हमें इनोवेशन के जो आप कह लें चांसेस हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जब इंटरेस्ट होगा तो हम उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे स्किल सेट के अकॉर्डिंगली और जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है हमें वो फील्ड चूज करनी है. ठीक है. हम एमबीए भी करते हैं, साइंस ग्रेजुएट्स भी हैं. साइंस के पास ग्रेजुएट्स के पास अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस ग्रेजुएट जो कि आज इस सेशन में बैठे होंगे फॉर श्योर, उनके लिए 2 से 3 तरह की जॉब्स जो नॉर्मली हम भी इंडस्ट्री में फार्मा में देख रहे होते हैं कि किसी ने फार्म डी किया है. ठीक है. एमएससी बीएससी केमिस्ट्री की है. सो दे हैव द ऑप्शंस कि वो या तो इसमें आ सके प्रोडक्शन में,
ठीक है, क्वालिटी साइड पे आ सकें। दूसरी उनके पास ऑप्शन होती है कि वो जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है, अप सेलिंग के लिए मार्केटिंग साइड पे, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी उनके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इट डिपेंड्स कि उनका स्किल सेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। कुछ अरसे बाद आप अपनी ही जॉब से बोर हो जाते हैं समटाइम्स, सो ये हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि क्या ये हमारा स्किल सेट है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर इन साइंसेस करने के बाद फिर एमबीए कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कुछ टाइम के बाद 3 साल 4 साल के बाद वो ये एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जॉब करनी है, ठीक है, या हमारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। सो वो इसलिए एमबीए करते हैं, अपने स्किल सेट को इन्हांस करते हैं और उसके बाद फिर उस कंसर्ट फील्ड को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आई कि राइट जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। आपने सीवी डिज़ाइन कर लिया, रिज्यूमे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। उसके 5 मेजर कंपोनेंट्स जिसमें कि आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, आपके एजुकेशनल डिटेल्स आ जाती हैं, एक्सपीरियंस आ जाते हैं, आपके अचीवमेंट्स आ जाते हैं, एंड इफ एनी रेफरेंस, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने जॉब एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। लेकिन वो जॉब एप्लीकेशन में अगर लिखा है 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस, सो वो वहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट गलत अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहुत सी जगहों पे लिखा होता है 0 to 6 months एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉर्मली वो जो 6 मंथ लिखा होता है वो लिखा होता है उनकी इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है, कहीं पे उन्होंने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, कोई सर्टिफिकेशन है उसके पास, तो वो एक्सपीरियंस मेंशन होता है। सो हमें सबसे पहले ये देखना है हम अपने कंसर्न जो जॉब स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडली उसमें ये आ जाता है कि कभी भी अपने प्रोफाइल को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा होता है, 4 डिफरेंट जॉब निकली, फॉर एग्जांपल एक आईआर की निकल आई, एक प्रोडक्शन में निकल आई, एक मार्केटिंग में निकल आई, एक ऑपरेशंस में निकल आई। एक ही प्रोफाइल ने 4 डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब वो प्रोफाइल की वैल्यू क्या रह जाती है, यानी कि उसको ये आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि मैंने किस स्पेसिफाइड जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब आपने अपना स्किल सेट, अपना इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें डिफाइन की हैं, प्लस ऑब्वियसली आपसे की डिग्री और आपका एक्सपीरियंस उस जॉब प्रोफाइल से मैच कर रहा होना चाहिए, उससे रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस तरह से 3 से 4 प्रोफाइल्स के लिए जॉब्स के लिए एक ही प्रोफाइल भेज रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स आए होते हैं एक पोजीशन के लिए, हम जब फ़िल्टर करते हैं तो हमें नज़र आता है अच्छा इसने उस 4-5 जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ था यार, यानी इसका मतलब इसका कोई अभी तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, फिर काफ़ी सारे सीवीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं 6 मंथ्स एक जगह जॉब की, फिर 6 मंथ्स कहीं पे चले गए, फिर 1 ईयर कहीं पे आ गए। सो हमें स्टेबिलिटी भी इंश्योर करनी है, ठीक है। वो ऑब्वियसली तभी होगी जब आपका इंटरेस्ट डिफाइन हो जाएगा। सो 3 चीज़ें हो गई, एक स्किल सेट डिफाइन होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका डिफाइंड होना चाहिए, तीसरी चीज़ हो गई कि आप राइट जॉब एप्लीकेशन दें जो आपके स्किल सेट, आपके पास्ट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस से मैच कर रही हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है। नॉर्मली फ्रेश कैंडिडेट्स बहुत कम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट द यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूएमटी दे कैन हेल्प द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई देयर फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है। फ्यूचर पोटेंशियल आप इस तरह से बता सकते हैं, हर पोजीशन के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। देयर इज नो बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, the best job in the world in which you are actually interested and you are happy to do that work, ठीक है। सो हमें वही वाली बात आ गई कि जो काम करने में हम खुश हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उस स्पेसिफाइड सेट स्किल सेट को हम लें, उस स्पेसिफाइड फील्ड को हम चूज करें और उसमें आगे चलें। अच्छा, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट, राइट जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपने क्या हुआ कि अब आपने जॉब स्पेसिफिकेशन चूज कर ली, उसके अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन भेजी, अब आप फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। फिल्टर होते हैं, आपको एक टेलीफोनिकली कॉल आती है, ठीक है। नॉर्मली इनिशियली ये एचआर डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो
they normally used to say कि if you have time so can, or is it the right time to talk with you, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास राइट टाइम, लाइक कोई सो के उठ रहा है या कोई कहीं पे बिजी हो सकता है, किसी और मीटिंग में हो सकता है या कहीं पे उसकी कमिटमेंट है, सो नो इश्यूज, यू आर नॉट बाउंड टू से कि जी जी बात हो सकती है जबकि आपको दूसरी डिस्टॉर्शंस भी आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो फर्स्ट टेलीफोनिक कॉल होती है ना 2 to 3 मिनट्स की, जिसमें वो आपसे इंट्रो ले रहे होते हैं, आपके बारे में पूछ रहे होते हैं, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, बिकॉज आप उन थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेस में से शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कहें सॉरी आई वॉज कमिटेड समवेयर, कैन यू जस्ट कॉल मी आफ्टर 10 to 15 minutes, 1 hour, नो इशू, और आप कहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी योर नंबर, आई विल गिव यू कॉल बैक, और इस तरह का कोई मैसेज उनको ड्रॉप कर दें, सो दैट आपका वो वाला जाए, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल if you have sent your resume to the to any organization, right? So उस वक्त कॉल को आपने लाइट नहीं लेना, कैजुअल नहीं लेना, यू हैव टू टेक इट सीरियसली और उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक एम्पल टाइम मिल गया, आपको पता है मैं 1 आवर में फ्री हो रहा हूँ, तो आप 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दें और अपने रिज्यूमे को एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, कि मैंने इस जॉब के लिए भेजा था और उस जॉब की जो जेडी है या जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो भी कंपनी ने आपको जॉब एड में दी हुई है, उसको भी रीड कर लें दोबारा से। You try to secure 100% the interviews interest over there on the call, कि वो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए या नेक्स्ट स्टेज पे जो भी इंटरव्यू है उस पर कॉल करें कि आप ऑफिस आएँ, ठीक है। सो अगर आपने वहाँ पे अटेंशन उसकी नहीं केटर की, सो इसका मतलब वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो हमें वहाँ पे भी 100% उस कॉल को जस्टिफाई करना है कि हम उसकी अटेंशन जो है प्रॉपरली अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आप इंटरव्यू के लिए पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, आप प्रॉपरली ड्रेसअप हुए हों, फॉर्मल ड्रेसिंग हो, डिस्पाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है डजेंट मैटर, ठीक है। कोट टाई भी नहीं सम टाइम मैटर, लेकिन ये है कि आपने ड्रेस पैंट पहनी हो, ड्रेस शर्ट पहनी हो, प्रॉपरली आपका हेयर स्टाइल है जो वो बना हो, अगर आप शेव करते हैं शेव हुई हो, ठीक है, और बियर्ड है तो बियर्ड प्रॉपरली कट हुई हो, ठीक है। सो ये प्रॉपर अटायर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल अटायर होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को कैटर करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ, कोई ऐसे स्लैंग्स ना यूज़ कर रहे हो, कैजुअल एटीट्यूड ना हो आपका, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू, ठीक है। ऑब्वियसली आप जेडी पढ़ के गए हुए हैं, ठीक है, जॉब एड आपने रिव्यू किया हुआ है, सो उस जॉब एड के अगेंस्ट ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। समटाइम्स कुछ कंपनीज में पर्सनल क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, आर यू मैरिड, अनमैरिड, हाउ मैनी किड्स यू हैव, ठीक है, बट इट डिपेंड्स हाउ मच समवन इज कमिटेड टू देयर फैमिली एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। सो आपने हर क्वेश्चन को बड़े टेक्टफुली डील करना है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं, आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही दिन से में 3 से 4 इंटरव्यूज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1 डे में प्रोसेस कर लेती है, कुछ आपको 3 to 4 डेज में कॉल करती है, या 3 to 4 टाइम आपको कॉल करेंगी, 4 लोग हैं तो 4 लोगों से अलग अलग होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज कर लेती हैं, सो इट डिपेंड्स, ठीक है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी पेशेंस लेवल भी चेक हो रहा होता है, हाउ मच समवन इज हैविंग अ गुड पेशेंस, ठीक है। सो ये भी चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये जो सारी राइट जॉब एप्लीकेशन इंटरव्यू पार्ट बताएं, ये सारी एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हाउ मच समवन इज डेडिकेटेड, स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, ठीक है। उसके अलावा वो उसके स्विचेस कितने हैं, ठीक है। उसने हमारे हर स्टेप को, जिसमें आपके पास
इंटरव्यू कॉल है, बल्कि जॉब के लिए अप्लाई किया है, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आई है, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, ये सारे स्टेप्स एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। सो रीड द जॉब एड केयरफुली, राइट, अप्लाई ऑन द राइट जॉब, ठीक है, सो दैट योर प्रोफाइल शुडंट बी डिग्रेड, ठीक है। सो ये अभी तक था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट द टॉपिक, ठीक है। सो एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? जी जुल्फ़ाल साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। 3 पार्ट्स में अब तक आपने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। पार्ट 1 में यू टॉक्ड अबाउट द स्किल सेट, इंटरेस्ट और राइट जॉब एप्लीकेशन, एंड देन इन पार्ट 2 यू हैव टॉक्ड अबाउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें जॉब कॉल आनी है तो कैसे बच्चों ने डील करना है उसको। फिर ऑब्वियसली जॉब डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आपने हाईलाइट की चीज़ें, और ऑब्वियसली यू हैव टॉक्ड वेरी वेल अबाउट द पेशेंस लेवल इज़ ऑल्सो टेस्टेड व्हेन they have called you for an interview और आप वहाँ चले गए। सारे process is very well defined by your side. I just want to know कि because it's a session on resume writing skills, so if you can now elaborate the students about the resume writing skills, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और कुछ resume अगर आपके पास हैं जो कि आप स्क्रीन पे शेयर करना चाहते हैं just to give impression कि that's how a resume should be, तो that would be great. ओके, आई बिलीव टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था दैट वाज राइट जॉब एप्लीकेशन एंड एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट यस, एज अर्ली आई टोल्ड यू दैट देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाइल राइटिंग, राइट। उसमें हमारे पास आ जाते हैं कि आपके पर्टिकुलर्स डिफाइन होने चाहिए। पर्टिकुलर्स में आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, एज आ जाता है, योर एड्रेस, योर टेलीफोन नंबर, योर इनफैक्ट आई ऑल्सो ऐड कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए उस पर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर शुड बी नॉट बी ओल्ड देन द 3 मंथ्स, ठीक है। लास्ट 3 मंथ से पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स, ठीक है। एजुकेशन में हम ये लिख देते हैं कि ग्रेड क्या है हमारा, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से हमने किया है, क्या कोर्स किया है, ठीक है। बट वी ऑल्सो मेंशन कि हमने किस टेन्योर में किया है, ठीक है, किस ईयर में, क्योंकि कुछ पोजीशंस में फ्रेश ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड होती हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्वायर्ड होती हैं, उनके लिए हमें फ्रेश ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए टेन्योर भी मेंशन होना चाहिए। सेकेंडली उसमें होता है एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस में भी आपने मेंशन की हो, प्रॉपरली अपनी जेडीज मेंशन की हो हर पोजीशन के अगेंस्ट, और उसमें भी आपने जॉब टेन्योर मेंशन किया हो। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ पार्ट, आपका आ जाता है अचीवमेंट्स का, ठीक है, कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, सर्टिफिकेशंस क्या हैं। सो ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोफाइल राइटिंग के। जी जुल्फ़ार साहब, ठीक है। हम स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर देते हैं क्वेश्चंस के लिए। सो इफ स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ओके, आई थिंक यू हैव elaborated it very well. Is there anything else left from your side, Zulfqar sahab, that you wanted to highlight in particular? और चीज मैं कहना चाहूँगा, मोस्टली एचआर जो है ना, लाइक मेरे तो कोई जो 8 to 9 years के एक्सपीरियंस है, उसमें आई यूज टू से इफ यू रिसीव कॉल विद इन नेक्स्ट वीक, ठीक है, सो इट मीन्स and it's understood that you are shortlisted for the next phase, right? And if you do not get the receive call in the coming week, so it means you are not shortlisted, right? Because normally जो regret emails जारी होती हैं वो proper process complete होने के बाद जारी होती हैं, जब आपको नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लेता है। माइट भी वो आपको 6 weeks के बाद ज्वाइन करता है, 4 weeks के बाद, उसके बाद हम रिग्रेट ईमेल्स कर रहे होते हैं। सो ये है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू जो भी एचआर या जो भी कंसर्न पर्सन जो भी मैसेज आपको दे रहे होते हैं उसे प्रॉपरली सुना जाए, ठीक है, और उधर से आपको आइडिया हो जाता है दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड। थैंक यू। Great. I think we are having one question from a student that has emailed us. The question is कि how is cover letter important to apply for a job? ऑब्वियसली कवर लेटर आपका ब्रीफ होता है ओवरऑल रिज्यूमे का, ठीक है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है। समटाइम आपका प्रॉपर प्रोफाइल नहीं कोई रीड कर पाता, ठीक है। सो कवर लेटर इज इम्पोर्टेंट, बट yes, if you have not made the cover letter, doesn't matter, profile writing अगर आपका रिज्यूमे इतना ब्रीफ है और इजीली है, उसे रीडेबल है, सो इट्स ओके, आप उससे भी
आगे कैरी ऑन कर सकते हैं. We have another question. A student is asking, what is the importance of a personal statement in a resume? Personal objectives. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उससे हमें जो कैंडिडेट है उसकी डिटर्मिनेशन का पता चलता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स का पता चल रहा होता है, हाउ मच ही इज डिटरमिन्ड, उसके फ्यूचर एम्स का पता चल रहा होता है कि क्या उसका फ्यूचर एम्स है, नेक्स्ट 5 ईयर्स का पता चल रहा होता है, 10 ईयर्स का, कि वो खुद को कहाँ पे देख रहा है, एंड हाउ मच ही और शी इज सीरियस अबाउट द जॉब. अच्छा, Zulkhan sir, की last question है for the fresh grads. What should come first? Internship experience or the education profile in a CV? बोथ जो इम्पोर्टेंट दोनों है, लेकिन ये है कि इनिशियली उसमें एजुकेशन लिखा हो, ठीक है, जो भी उनके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, और उसके बाद उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइक जिसमें उसने 2 या 3 जो भी इंटर्नशिप्स की हैं फिर वो लिखा हो. Great. And Zulkhan sir, जैसे बताया कि this session will be recorded and shared to the students as well. So those who cannot participate, they will obviously go through your effective thoughts. Or inshallah, then whoever have a question, they can email us, and then we'll share that questions to you. इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, or else we can close the session. Thank you so much. It was a very good Great. session, and Great. Just let me just close it for the all students. thank you. So obviously, I hope it was a great learning experience for all of us, especially students who have gained a very valuable insight from your respective thoughts. And OCLP will continuously strive hard to provide the resources, supports, and opportunities to help students transform themselves into marketable graduates. And we'll be keep on bringing such more activities in the future. So thank you, everybody. Stay well. Thank you. Take care. Allah Hafiz.